गुड मॉर्निंग पिला माने। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। तो आज हम आलोचना करिबा सर्वंसहा माटी। सर्वंसहा माटी रो कवि होचंदी किए विद्युतप्रभा देवी। तांकर जन्म हेतिला केबे 1926 मसिया रे एवं मृत्यु हेतिला 1977 मसिया। स्वाधीनता परवर्ती समय रे ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जने विशिष्ट कवि प्रतिभा। से अविभक्त कटक जिल्ला रो आली थाना अविभक्त कटक जिल्ला रो आली थाना हला अधीन रे थिबा नाटोरा गांव रे जन्म ग्रहण करथिले। केउ गांव रे नाटोरा गांव रे जन्म ग्रहण करथिले। कविंकर सृष्टि रे स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक चेतना, जीवन बोध, आध्यात्मिकता, निसर्ग दृष्टि मंजुल परिप्रकाश घटिछि। तांकर रचित कविता पुस्तक सविता से जो कविता पुस्तक सब लिखिजंती तांकर कविता पुस्तक रे हम कोन पाइबा को कविता तांकर सृष्टि सविता सविता होती तांकर गोटे कविता पुस्तक उत्कल सारस्वत प्रतिभा उत्कल सारस्वत प्रतिभा तापरे कनकांजलि तापरे हमर अछि मरीचिका तापरे अछि विहायसी आ कोन अछि झरा शेफाली झरा शिवली झरा शिवली स्वप्न दीप काकली आउरी अछि स्वप्न दीप तापरे काकली काकली स्वप्न दीप परे कोन अछि काकली अछि ना तापरे जहा कुजी संचयन हला तापर अछि माटी पानी पवन माटी पानी पवन हला एई सब जो कविता पुस्तक गुडी को अछि ताहा ओडिया साहित्य को खूब समृद्ध करिछि। से संचयन पुस्तक पई ओडिशा साहित्य एकेडमी तरफ रु सम्मानित होइतिले हला संचयन पुस्तक संचयन पई से कोन पाइतिले ओडिशा साहित्य एकेडमी ओडिशा साहित्य एकेडमी सम्मान लाभ करथिले हला ओ पुस्तक पई संचयन पुस्तक पाए एवं आमे जो कविताटी आलोचना करबा को जाउछु से कविता होउची कोन सर्वंसहा माटी जोटा आसीची कोठी माटी पानी पवन माटी पानी पवन एई कविता रो आमे सर्वंसहा माटी कविता रे हमर उद्धृत हेछि एवं सर्वंसहा माटी को एथिरे एथारे सर्वंसहा माटी को मां सहित तुलना करी कवि मार मोहनीय गुणावली को वर्णना करिसंती एवं मनुष्यर सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करबा पई से आह्वान जणाइसंती। आमे देखुछु जे मां होछि कोन मां सर्वंसहा अटे सबु सही जाए पिलार समस्त अली अगली को से खूब कष्ट सहय करी सबु सही जाए किंतु केबे पिला को बारण करे नाही कि मना करे नाही पिलार सबु अझट को से सही थाए तेनु मां सर्वंसहा अटे मां कोन अटे सर्वंसहा अटे
ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ସରିଲା, ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଯେ ଭ୍ରାତା ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିଲା? ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଯିବା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ଦର୍ଶନ କରିବା, ବୁଲିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବା। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ ଅପିତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନାମ ରୁଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜନନୀ ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗରିୟାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ରାମଙ୍କର ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ତାହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେତେ ଜନ୍ମଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଯେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି କବିତାଟି କ'ଣ? ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ସର୍ବଂସହା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ସର୍ବଂସହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ସର୍ବଂସହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ଯିଏ ସବୁ ସହିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଂସହା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ସବୁ ଯିଏ ସହିଥାଏ, କ'ଣ ସହିଥାଏ? ଆମେ ଦେଖ ମାଟିକୁ ହାଣୁଛୁ, କାଟୁଛୁ, ମାଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟି ଉପରେ କରୁଛୁ, ମାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ମାଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ମାଟିକୁ ହାଣି ଦଉଛୁ, ବମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଟି କେବେ ଆମକୁ ମନା କରେ କି? ନାଇଁ। ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରେ? ତା ମାର ଦେହରେ ଝାଡ଼ା କରିଦିଏ, ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ, ମା ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା କରେ, ମାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦିଏ, ହେଲା, ବଦମାସି କରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମା ତା ପିଲାକୁ ଫିକି ଦିଏ କି? ନା। ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ମା ସହି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଗରିବ, କିଏ କୋଉ ଜାତିର, କିଏ ବଡ଼, କିଏ ସାନ, କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରିଥାଏ। ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ସେ କେବେ ମନା କରେ ନାହିଁ। ମାଟି ମା କାହାକୁ ସେ କେବେ ମନା କରେ ନାହିଁ। ଓଲଟା କ'ଣ କରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ମାଟି ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆମର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ? କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ? ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ, ଯାହାର ରସ, ରୂପ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି, ହେଲା, ଯୋଉ ଗାଁର ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢିଛନ୍ତି। ବିଷମ ବିପାକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି, ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ କିଏ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠରେ ସେହି ମୋର ପଲ୍ଲୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି କହିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଖିଚିଙ୍ଗ ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ତାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷମ ବିପାକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗଢିଛି, ବଞ୍ଚେଇ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତେଣୁକରି
कवि कहते जे जन्मनी एवं जन्मभूमि स्वर्गठारू गरियान अटे। ठीक सेहीपरि माँ किपरि जेपरि आमर समस्त दुख अली अर्दली को से सह्य करिथाए, ठीक सेहीपरि सर्वंसहा माटी मनीष ता उपरे जेतिकी अत्याचार कले मध्य से सबको सही दे। तेणु माटी को सर्वंसहा बोली कहते किए कवि विद्युत प्रभा। ताले एठारे माटी माँ प्रति आमर स्नेह, आम प्रति माटी माँ स्नेह, आम निजर देश पाई आमर स्नेह, आमे जन्म नहीं जो माटी जो देश जो गाँ जो प्रदेश ता पाई आमर स्नेह तार पाई भल पाइबा एही कवितारे आमे शिक्षा लाभ करिबा। आमे कवितार या शिखिबा जे माटी माँ किपरि सर्वंसहा, माटी माँ किपरि समस्त दुख कष्ट अली अर्दली को आमर सही जाउछि एवं आमको स्नेह रे से पाछोटी नउछि कोले नउछि पाखरे रखिछि, आमको केबे मना करू नहीं। ताले आमे कविता को जीवा। तापरे आहुरी गोटे कथा कहिसथि विषय मनुष्यर सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करबा पाई मध्य से आह्वान जणाइछथि। एई कवितार शेष पद को आमे जेतेबेले जीवा सेतेबेले आमे जानि परिबा जे कवि काहे कि कहउचंती जे एई सुप्त दिव्य चेतना ताकू माटी को चेतन गरभा माटी बोली से कहउछथि। कविता को जीवा आमे कविता को जीवा पूर्व आउ गोटे कथा मु आलोचना करबा पई चाहे। जेतेबेले समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हैला एवं जीव जगत सृष्टि करबा पई भगवान चाहिले सेतेबेले हमर जो पंचभूत अछंती सेमानन को डका गला एवं सही समय रे पचरा गला जे तुमे किए कोन काम करियो। भगवान इच्छा प्रकाश कले मु गोटे एमिति जीव जगत सृष्टि करबा पई चाहूछि जोठारे जीव माने रहिबे, जीवन सृष्टि हेबो, गछ पत्र जीव जगत सृष्टि हेबो, प्राणी माने रहिबे एवं सेमाने को लालन पालन आमको करबा को पड़िबो, आमको तांकर लालन पालन करबा को पड़िबो। ताले आमे किए को काम नेबा, किए कोन तुमे काम नेबो। एपरि भावरे जेतेबेले सेमाने आलोचना कले से समय रे समस्त देवता माने विभिन्न प्रकार काम नेबाकू चाहिए। सेमानक भितरे पवन देवता, जल देवता, अग्नि देवता आसिले। एमाने समस्ते निज निज काम करिबा पई चाहिए। हेले तांको भितरे गोटे कंपटीशन हैला जे किए 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 बड़ किए बड़ सेमान तो काम समस्ते कले किंतु किए एमानको मध्यरे बड़ तांको भितरे अहं भाव जात। तेणुकरी सेमाने निज निज भितर प्रतिद्वंदिता मूलक भाव सेमाने काम नेबाकू चाहिए। बुझेला बुझेला नहीं। तापरे सूर्य देवता जोटा कि अग्नि देवता से कहले हाँ मु सभा शेष माने ऊपर रही एवं आलोक प्रदान करी से कहले। जेतेबेले सूर्य देवता कहले जे मु समस्त को ऊपर रही, तापरे जल देवता भाविले अरे सूर्य देवता जदि ऊपर रही जिवे ताले मोर मान सम्मान कमी जिवो। तेणु से कहले जे सूर्य जदि ऊपर रहुची ताले मु ए जो पृथ्वी अच्छी तार तलकू रही सूर्यर रश्मि को जमती कि मु दरकार पड़े छेकी पारि ताले मो सूर्य ठारू बेसी बलियान हेबी बोली से चिंता कले मने मने।
एवं कहले हाँ मु सूर्यर ठीक सोलकू आकाश मंडल रे रही एवं मु लोक मानकू पानी वर्षा करी है जल देवता। तापर पवन देवता चिंता कले कहले कि अरे ये तो सूर्य ठारू भी बलिया नहीं गला सूर्यर रश्मि को ये तल को आसवा को देव नहीं। तापर से चिंता कले याठू मते मते आउ किछि करबा को पड़िबो। तापर पवन देवता कहले हाँ मु ए जो वायुमंडल जोठी मेघ रहिबो मेघर तार तल को मेघ ऊपर को गोटे स्तर रहिबो वायुमंडल मु वायु प्रवाहित करिबी समग्र ए जो पृथ्वी ऊपर वायुमंडल जो स्तर अछि हमर से स्तर हे कि से कहले मु वायु प्रवाहित करिबी सब आडे पवन संचारित करिबी। से काहे कि कहले कारण से देखिले जे मेघ जल यदि अछि ताले मेघ को मु मध्य चाहिले एठु नै कि सेठी फोपाडी दे पवन रे मेघ उड़ी जाए खंड खंड दला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत यथा नील समुद्र रे हम पढुतले काली हैला। तो एई जगह रे पवन निजे निजे भाबिला कि मु जल देवता ठारू मध्य बलियान हे एपरि भाबरे समान निजर काम बांटी नेले किए कोन करिवे। तापरे रहिले पृथ्वी माता अदिति अदिति होचंदी पृथ्वी माता। तापरे से कहले जेते बेले अदिति को पचरा गला पृथ्वी को पचरा गला जे से कहले कौन ना भगवान तक पचारे तुम्हें कौन कर समस्त तो निज निज काम नहीं तुम्हें कौन कर से कहले भगवान आपन जहाँ मते आदेश देवे मु ताहा पालन करी। भगवान कहले कि कामटा टिके सहज नुहे कष्ट अटे तुम देहरे लोक मैंने जन्म नेबे मनीष जन्म नेब विभिन्न पशु पक्षी जन्म नेबे तुम ऊपर अत्याचार करेंगे तुम्हें सही पार तो। तापरे पृथ्वी कहले कि आपण मते आशीर्वाद देले मु सबु सही पारिबी। ए कथा जेतेबेले सुनिले तापरे भगवान प्रस्तुत हेले पृथ्वी रे जीव जगतर सृष्टि होला एवं ए कथा सुनिकी वायु देवता जल देवता सूर्य देवता समस्ते नतमस्तक हेले पृथ्वी पाखरे कारण जे निजे आमे अन्य ठारू बड़ हेबा पई से माने चाहुतिले किंतु आमर जो कोन वायु देवता जो अछंती जल देवता जो अछंती से माने आमे निजे बड़ बोली से चाहुतिले किंतु सेमानक भितरे सेमिति जो प्रतियोगिता लागि रहितला से प्रतियोगिता सबु खंडन करदेले किए एवं सबु सहिबा पाई से प्रस्तुत हे गले एते सहिबा पाई जेतु प्रस्तुत हेले समस्त दुख कष्ट को जोटा अन्य देवता माने ग्रहण करि पारि नथिले तेणु भगवान ताको आशीर्वाद कले एवं पृथ्वी पृष्ठ रे जीव जगतर सृष्टि हेउ बोली परिकल्पना कले। तेणु समस्त देवता पृथ्वी पाखरे नतमस्तक हेले एवं समस्ते ताको मां बोली संबोधन कले। तेणु पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नैतिबा प्रत्येक जीव जंतु होउचंती पृथ्वीर शिशु एवं पृथ्वी समस्तंकर मां अटती। ताहले आम कविता को जीवा सरब सोहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर समाने देइछु बांटी तोर मीठा पानी तो धीर पवन देहे मो देइछि बल सकति देइछि त्रुपति देइछि तो गछल तार फल सबुज घासर कोहल बिछणा दिए कि आराम मते मा परि मोर अलियर दली केते न सहिछु सते देह दुख पाई साइतिछु केते चेरमूली गछलता मन सुख लागी नई समुद्र रे भरी अछु हस कथा बुकु मो भुलाए आखि मो भुलाए तो बण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बोले नाही छाड़ीबाकु तोर काख जन्म कालो जे देहे तो आघात केते न देइछि मुहि निज छुआ बोली सबु दोष सिना क्षमी अछु एका तुही
जेते राग रोष करे तोह पाखे मा बोली जाऊ भूली केते तप करी एई जनमरे आसीछि तो देश भूली अमाप धरी जु दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राती देह सीना मोर पहाड़ पथर कमल पतर प्राण दुख दड़ मोड़ी सहिबाकु मते करी दे तो परिटाण तोर मुकति रे मोर मुकति मा तोर हसे मोर हस तोहरी अंतर आदेशे चले मु घोषी तोर महाजस चिर दुखर तो पाहांती अंधार राति आसु अछि पाही से नुआ सपने फुले मु आनंदे जय गान तोर गाई तू ही देवभूमि तू ही वीरभूमि तू ही मो भारत मा तोर पाद धूली मुंडे होई बोली रखिबी तोहर ना चेतन गरभा माटी केउठी हजिछि खोजी दे मोर चेतनार चाबी काठी चेतनार चाबी काठी कवि विद्युत प्रभा देवी खूब सुंदर भाव में माटी मांकर वर्णना करिसंती से कहउछंती कोन प्रथम पदरे प्रथम धाड़ी से आरंभ करिसंती जे तू होछु मां सर्व सहणी जे कि सबु सही थाए ताकू आमे सर्वं सहा बा सर्व सहणी बोली अभिहित करिथो सर्व सहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर समान देइछु बांटी एई पदरे बुझिबा पई किछि क्लिष्ट शब्द नाही से कहउचिंती कोन जे हे सर्वं सहा माटी तू होछु सर्वं सहा समस्त दुख जंजाल जेति की ओळी अर्दली मनुष्य एवं जीवजंतुंकर अछि सब तो सही जाइछु एवं समस्तक उपरे समान भाव रे तोर स्नेह को बांटी देइछु गोटे मार जते बेले दुई चारिटी शिशु थांती से कोन करे सब पुत्र मानकु तार पुओ झियो मानकु से समान भाव रे स्नेह करे तापरे से कहउचंती तोर मिठा पानी तोर धीर पवन देहे मो देइछि बळ तोर मिठा पानी पान करी मो तृप्त हेइछि जीवन धारण करिछि तोर एई पवन रे मो जीवन धारण करूछि मो देह रे बळ शक्ति प्रदान करिछि सकति देइछि तृपति देइछि तो गछलतार फल एवं तोर जो चतुर्पार्श्व रे जो परिवेश अछि सेई परिवेश रे जो गछलता अछंती से गछलता रे फलुतबा फल माने ताकू मु ग्रहण करूछि एवं मो शरीर को बंचाई रखुछि तेणु शक्ति देइछि मते एवं तृपति देइछि तृपति रो गद्य रूप हैला तृप्ति सो आमे एठी तृपति कहूछु हैला तृपति एटा होछि पद्य रूप यार पद्य रूप कोन हबो तृप्ति हैला ताले तृप्ति प्रदान करूछि मते खाइला परे हम जो संतोष आसे आत्मसंतोष आसे पेट भरिबा परे से जो तृप्ति मते तू प्रदान करिछु तोर एई गछलतार फल खाइकि मु तृप्त हेछि एवं तोर पानी पवन रे मोर जीवन धारण करिछि तोर गछलता रो फल खाइकि मु तृप्त हेछि एवं जीवन को बंचाई रखिछि तापरे से कहउचंदी सबुज घासर कोमल बिछଣା दिए कि आराम मते मा परी अळी अरदळी केते मा परी मोर अळी अरदळी केते न सहिचु सते कवि माटी मा को कहउचंदी जे हे माटी मा सबुज घासर तोर कोमल बिछଣା केबे घास रे गडीचो गडीन गडीचो तो घास आमर बगीचा मानकरे एबे जो एई घास कथा मु कहू नै जोटा नेचुरली प्राकृतिक उपाय रे जो घास होइछि कोमल घास पड़िया रे बाहरी दिबो जो घास उठी दिबो से घास ऊपर जेतेले आमे प्रायतः दशहरा मासरे सेमते सुंदर घास सब आड़े हेई थाए तो सेते बेले जो घास थाए आमे से घास रे जेतेले गडू हम बहुत आराम लागे कोमल घास
तेणु से कवि कहउछन्ति जे कळ घासर बिछଣା तू मो पाई प्रस्तुत करि देइछु सबुज घासर कळ बिछଣା दिए कि आराम मते सेतिरे जेतेले मो सोई पडुची मते कि आराम लागुची माटी परे मा परी मोर अली अरदली केते न सहिछु सते तुमर मा जेमती अली अरदली सहिछि तुमर सबु अली अरदली को तू सही जाउछु बोली माटी मा को से कहउछन्ति कवि आहुरी कहउछन्ति देह दुख पाई साइतिछु केते चेरमूली गछलता मन सुख लागी नई समुद्र रे भरी हसु हस कथा देह दुख पाई जते बेला हमको कोनोसी व्याधि होउची रोग होउची सेते बेला हम कोन पैद पाख को जाउछु औषध डाक्टर पाख को जाउछु से सब डाक्टर माने कोठो औषध आनुछन्ति विभिन्न प्रकार उद्भिद चेर मूली रो सब औषध गुडा को प्रस्तुत हेउची से जो औषध गुडा को प्रस्तुत होउची से प्रकृति हम पई कोन करिछि सब साहित्य की रखिछि तेणु कवि तांको कहउछन्ति जे हे माटीमा तू हमर देह दुख पई कोन करिछु समस्त प्रकार औषधीय वृक्षर व्यवस्था करि रखिछु चेरमूली आम पाई साइती रखिछु एवं मन सुख लागी मन खुशी पाई आम पाई कोन तू साइती रखिछु नई समुद्र रो हस कथा रखिछु आमे जते बेला छुट्टी होउची वेकेशन होउची दशहरा छुट्टी पूजा छुट्टी एक्समस छुट्टी हला आमे बुलिबा पाई गले भोजी करबा पाई आमे कोठी की गले जोठी पानी थिला नई पाखो को गले समुद्र पाखो को गले झरणा पाख को गले आमे जोटी पानी नथिबो सेठी भोजी करबा पय जाउ की नाय आमे जो पिकनिक जाउ जोटी पानी रो स्रोत थिबो आमे ता पाख को जाउ सेठी आमे पानी को देखि एवं पानी सहित संश्लिष्ट होइतिबा परिवेश को देखि आमे सेठी खुशी होउछु बुझुछि ना नै बुझुछि ना नै ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आमे जते बेले पोएम टी पढुतिले से ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ले कोन वर्णना करथिले कवि सेठिरे से जो पानी नईर पानी रे साइड रे जो घास गुडा को उठितिबा कथा से कहउतिले मोसिना घास जो बुझि परछ ना हला तो तार जो नई फूल रे अनेक फूल गछ छोट छोट घास फूल उठी थाए विभिन्न प्रकार गछ वृक्ष लता सब थाए से सब परिवेश से आमे खुशी ही तेणु मन सुख पाई तू नई एवं समुद्र रे हस कथा भरी रखिछु बोली कवि माँ माटी माँ को जनाउछ प्रार्थना निवेदन तो नुहे तांको प्रशंसा करूछंती माटी माँ रो गुणगान करूछंती बुझिएला ई पदटी तापरे से कहूछंती बुकु मो फुलाए आखि मो फुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ी बाकु तोर काख बुकु कहले छाती बुकु कहले कोन छाती जेते बेला हम बहुत खुशी हे जाऊ हमर हृदय फुले छाती फुल्ला बोली हमको अनुभव हुए खुशी रे हम जेते बेले आत्महरा हेइपु सेते बेले हम हृदय फुली उठे छाती फुली उठे हम जेते बहुत खुशी हे कवि सेही कथा कहउचंती मन खुशी हेले आमे से कहउचंती जे तो बण पक्षीर डाक जेते बेला आमे पिकनिक जाउछु जंगल बुलिबा पई जाउछु बा कोनोसी बगीचा को बुलिबा पई जाउछु सेते बेले आमे देखुछु सेठी विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर राव आमे सुनिबा को पाउछु ताकू सुनिला परे हम मन भितरे खुशी जात होउछि एवं सेथिरे कहउचंती कवि मोर छाती फुली उठुछि बण पक्षीर डाक एवं सरग डाकिले मन बळे नाही तापरे आखि मो भुलाए भुलाए माने भुलेई देबा आखि मो भुलाए अर्थात मु तोर सौंदर्य विवाह को देखी मोर मन मुग्ध हो जाए एवं मोर आखि खोला है कि रही जाए तोर सौंदर्य विवाह को दर्शन करबा पाई प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शन करबा तुमे जदी केबे सेमती प्राकृतिक सौंदर्यमय परिवेश को जीव ताहले तुमे से सौंदर्यमय परिवेश देखिकी जुआडे देखिबो सुंदर देखा जाय जुआडे देखिबो भलो देखा जाउथबो जुआडे देखिबो मनमुग्धकर देखा जाउथबो सेही परि परिवेश कथा कवि एठारे वर्णना करूछन एवं से कहउचंती जे आखि मो फुल बुकु मो फुलाए आखि मो फुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बोले नाही छाड़ीबाकू तोर काख काख कहले मार काख मार कोण तो कवि कहउचंती जे एठारे
स्वर्गरु भी जदि डाकरा आसे ताले मार कोल छाड़िबाकू मार काख छाड़िबाकू मोर मन बळे नाही बोली से कवि स्वर्गादपि गरियसी परा कहिले स्वर्ग ठारू मध्य जननी एवं जन्मभूमि बड़ जदि जननी एवं जन्मभूमि मोह एते बड़ जदि होई न थांता ताहले एई भारत मातार अनेक संतान हसी हसी देश पाई जीवन देई न थांते हसी हसी सुली रे चढ़ी न थांते निजर जीवन को मूर्छित दे न थांते तेणु कवि कहउछन्ति जे स्वर्गरु मध्य जदि डाकरा आसीबो ताले मार कोल मार काख छाड़िबा को इच्छा हुए ना तेणु एई स्वर्ग पृथ्वी पृष्ठरु जीवा पाई हमको इच्छा हुए ना केही मरिबा को केबे चाहे कि जदि भगवान को पत्र पठेले जे तुमको स्वर्ग रे समस्त प्रकार व्यवस्था कर दिया जीवो आउ तुमे मृत्यु हेई कि तुमे चली आसो आमे जीवा को चाहेबा केही चाहेबा कारण सेठी स्वर्ग रे कोन अछि व्यवस्था हमको जणा ना भगवान निजे डाकिले मध्य आमे जीवा ना तेणु मां भगवान ठानु मध्य बड़ जे हमको जन्म देइछि जे हमर शरीर को गढ़ी जी आम भितर ज्ञान प्रवेश करैछि जी हमको आम शरीर आम मस्तिष्क तथा आमर जो समस्त अंग प्रत्यंग प्रदान करने सहित जी हमको जी आमर प्रथम शिक्षयित्री अटे धात्री अटे जन्मदात्री अटे से माँ जहाँ को आम केबे हतादर करि परिबा नाही जो माँ हमको जीवन दान करिछि से माँ कौन भगवान ठार बड़ हो पारे केबे न तेणु भगवान जदि डाकरा देवे स्वर्गरु ताहले मध्य एई पृथ्वी पृष्ठ माँ कोल छाड़ी हमको जीवाकू इच्छा हुए तेणु पृथ्वी माँ एवं निज जन्म कला माँ स्वर्ग ठार मध्य बड़ बुझी तापर कवि आहरी कहउचंती कोन जन्म कालु जे देहे तो आघात केते न देइछि मुहि निज छुआ बली सबु दोष सिना क्षमी अछु एका तुही जेबेठारु मु जन्म हेइछि जन्म कालरु जेबेठारु मु जन्म हेइछि जन्म कालरु अनेक आघात मु तते देइछि माटी ऊपर अनेक अत्याचार मनीष करूछि माटी को काटी दउछि माटी को पोड़ी दउछि माटी को इटा गढ़ी के पोड़ी दउछि माटी रे विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी करूछि माटी रे झाड़ा परिश्रा करूछि माटी को खोली की बिक्री कर दउछि बोमा फुटे दउछि मनीष जहां इच्छा ता ऊपर माटी ऊपर अत्याचार करूछि हेले माटी मां केबे किछि कहि मनीष जन्म हेबा ठार तार मृत्यु पर्यंत माटी ऊपर विभिन्न प्रकार अत्याचार करि चलिछि किंतु मां परिसे सही जाइछि मां परिसे सही जाइछि मां जेमति पिलार समस्त अली हरदली को सही जाए ठीक से ही परिसे सही जाइछि कवि कहउचंती जन्म कालरु केते केते तो जन्म कालु जे देहे तो आघात केते न देइछि मुनि जन्म कालरु तो देह रे मु अनेक आघात देइछि निज छुआ बोली सबु देश सेना क्षमी अछु एका आ निजर छुआ बोली कि तू समस्त मोर दोष को क्षमा करी देइछु क्षमी अछु अर्थात क्षमा करी देइछु जेते राग रस करे तोह पाके मां बोली जाओ भूली केते तप करी एही जन्म रे आसीछि तो देश बोली से कहउचंती जे जेते राग रस करे तो ऊपरे मां बोली तू सब भूली जाओ जे केते तप करी एही जन्म रे तो देश बुलिबा पाई मु आसीछि अर्थात एही पृथ्वी पृष्ठ को आसीछि एही भारत वर्ष को बुलिबा को आसीछि पुण्य भूमि भारत वर्ष जोठारे अनेक महामनीषी माने जन्म ग्रहण करिसंती स्वयं भगवान जन्म ग्रहण करने को चाहती पुण्य भूमि भारत वर्ष रे से भारत वर्ष रे मोर ला जन्म मु केते तपस्या कला परे केते तप करी एई जन्म रे आसी तो देशे बुली केते जुगर तपस्या परे मु एई माटी रे जन्म हेबार सौभाग्य अर्जन करिछि एई माटी कहिले पुण्य भूमि भारत वर्ष अमाप धरी जो दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागि पड़े दिन राती
सेई माटी माँ को कवि पुणी निवेदन करुछंती जे हे माटी माँ तोर जो अमाप धैर्य शक्ति अछि तू सबु कष्ट को सही पारुछु सेई अमाप धैर्य शक्ति भितरु तू टिकिए मते दे माँ बोली कवि निवेदन करुछंती कहउछंती अमाप धैर्य दे टिके मते टिकिए मागुछंती बेसी मागु नाहंती से कहउछंती अमाप धैर्य तोर धैर्य को केही मापी परिबे नाही सेई अमाप धैर्य भितरु टिके धैर्य मते दे अमाप धैर्य दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निदा माने टाणो हेबा आमे फंपा सिलिंडर निदा सिलिंडर कथा गणित रे आमे पढी दिबा तो फंपा सिलिंडर रे मझिरे खोलपा थाए किंतु निदा सिलिंडर रे मझिरे खोलपा न तेणु निदा हो मोर छाती निदा हो टाण हो शक्त हो बोली कवि निवेदन करूछन अमाप धैर्य दे टिके मते निदा हो मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागि पड़े दिन राति मु निजे पथे दुख सहे एवं एई जगत पाई मु दिन राति लागि पड़े तांकर सेवारे जनतार सेवारे लोकमानकर सेवारे मु दिन राति केमिति लागि पड़े सेति पाई तू मते शक्ति प्रदान कर बोली कवि कहउछन अमाप धैर्य दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागि पड़े दिन राति दिन एवं राति समान कर देकी जगत पाई मु जेमती लागि पड़िबी मते सेति के अमाप धैर्य ठारू टिके धैर्य मते दे मां बोली से कहउछन तापरे से कहउछंती देह सिना तोर पहाड़ पत्थर कोण पतर प्राण दुख दळमडी सहिबाकू मते करि दे तो परि टाण कवि कहउछंती जे देह सिना तोर पहाड़ पत्थर तोर देहटा पहाड़ पत्थर रे गढा आमे देखिजो हम हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत अनेक पहाड़ पत्थर रे परिपूर्ण होईछि समग्र विश्व समग्र पृथ्वी रे अनेक पहाड़ पत्थर अछि हेले कवि कहउछंती एठारे भारत मार से वंदना करूछंती पृथ्वी मार वंदना करिकी शेषरे से भारत मां पाखु पहुंची जाइछंती एई माटीर वंदना करूछंती पुण्यमयी भारत वर्षर वंदना करूछंती एवं से कहउछंती जे तोर देहटा कोण पत्थर रे गढ़ा हेले तोर मनटा तोर प्राणटा कोण पत्तर सदृश तोर हृदय कोण पत्तर सदृश बोली से कहउछन देह सिना तोर पहाड़ पत्थर कोण पत्तर प्राण तोर प्राणटा बहुत कोमल तू बाहरु बहुत कठोर हेई पारु किंतु भितरे तोर मन तोर हृदय तोर प्राण खूब कोमल कोमल पत्र परिका दुख दळमडी सहिबाकू मते करि दे तो परि टाण एवं दुख दळमडी शब्दर अर्थ कोन जंजाल तो दुखर जंजाल सहिबा पाई करि दे तो परि टाण कोई पुणी निवेदन करी कहउछंती जे दुखर जो जंजाल अछि सेई दुख जंजाल रूपक दुख को सहिबा पाई समाज रे बंचिबा पाई दुनिया रे बंचिबा पाई जति कष्ट अछि सब कष्ट को सहिबा पाई जे परि मो पाखरे शक्ति आसीबो मते तो परि टाण करि दे मा बोली माटी मां को निवेदन करूछंती पुणी कवि गाई उठुछंती कोन सेते बेले भारत वर्ष इंग्रेज मानक शासन अधीन रे थिला तेणु भारत मुक्त नथिला कवि पुणी गाई उठुछंती कहउछंती कोन तोर मुकति रे मोर मुकति मा तोर हसे मोर हस तोहरी अंतर आदेश चले मु घोषी तोर महाजस कवि कहउछंती तोर मुक्ति रे मा मोर मुक्ति हबो तू मुक्ति पाइले मोर मध्य मुक्ति हबो देश जते बेले पराधीन थिबो सेते बेले कोनोसी मनीष सेई देश रे वास करूथबा नागरिक केबे मुक्त होई परिबे नाही तेणु कवि कहउछंती तोर मुक्ति रे मा मोर मुक्ति पराधीन भारत जते बेले स्वाधीन हबो सेते बेले मोर मुक्ति मु तोर हसरे मा मु हसिबी मो देश हसिले मु हसिबी देश हसिले दुनिया हसिबो तोहरी अंतर आदेश चले मु घोषी तोर महाजस एवं तोर अंतरर आदेश मु पालन करी तोर महाजस को गान करूची तोर गुणगान करूची तो पाई मु जीवन देवा को प्रस्तुत हेउची तो पाई तोर मुक्ति पाई मु संग्राम चलुची चिर दुखर तो पहांती अंधार राति आसु अछि पाही
ସେନୁଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। କବି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିର ଦୁଃଖର ତ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ଯୋଉ ଦୁଃଖିନୀ ମା ଭାରତ ମା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆସିଛି, ପରାଧୀନ ହୋଇକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ପରାଧୀନ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଇ ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଦୁଃଖର ରାତି ପାହିବାକୁ ବସିଛି, ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଦୁଃଖର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିବା କଥା ବୁଝାଉଛି। ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକାଳ ହେଇଯାଏ, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ 4ଟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାହାନ୍ତିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। 4ଟା 5ଟା ପରେ ପାହାନ୍ତିଆ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ସକାଳ ପାହି ପାହି ଆସୁଛୁ ସେଇ ସମୟର କଥା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତ ସେଇ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ତୋର ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି କବି ମାଟି ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିର ଦୁଃଖିନୀ ତୁ, କେତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୁଃଖ ତୁ ସହି ଆସିଛୁ, ପରାଧୀନ ହୋଇକି ତୁ ରହି ଆସିଛୁ। ଆଜି ତୋର ଦୁଃଖର ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି ପାହିବାକୁ ବସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ମାଆକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଚିର ଦୁଃଖର ତୁ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେନୁଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଦେଶ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ସୁନାର ରାଇଜ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ସେ ସମୟରେ କବି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବା ସେ ସମୟର ଜନମାନସରେ ଏଇ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଘର କରିଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ କବି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ମଣିଷ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋର ଦୁଃଖର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଶେଷ ହେବାକୁ ବସୁଛି ମା, ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିବି, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ମୁଁ ଜନତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି। ସେଇ ଖୁସିର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। ଏବଂ ତୋର ଜୟଗାନ ଗାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା 1947 ମସିହା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନତା ମାନେ ଜାଗରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଚାଲିଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଇଂରେଜ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ। ଆସିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଲି ରଖିବି ତୋହରି ନା। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁହି ହେଉଛୁ ଦେବଭୂମି, ତୋ ଦେହରେ ଅନେକ ଦେବତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ଦେହରେ ଅନେକ ଦେବତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୋ ଦେହରେ କେତେ ବୀର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ମୁଖରୁ ତୋ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା। ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଭାରତ ମା, ତୁ ହଉଛୁ ଦେବଭୂମି। ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବୀର ମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁହି ହଉଛୁ ଭାରତ ମା। ଏଠି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରି ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପରି ନେତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ଦେବତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି, ଭଗବାନ ଜୈନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି, ଏଠି ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି, ଅନେକ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମହଂସଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ହଉଛୁ ଦେବଭୂମି, ତୁ ହଉଛୁ ଦେବଭୂମି, ତୁ
देवभूमि अर्थात देवता माने एठारे जन्म अवतार धारण ग्रहण करती। तू हूँ वीरभूमि वीर मानकर तू प्रसविनी अनेक वीर को तू जन्म देइछु एवं से कहूचे तोर पाद धूली को मु मुंडरे मारी तोर पाद धूली को मु मुंडरे मारी मुंडरे बोली है कि रखिबी तोरी ना एवं तोर टेको रखिबी तोर ना रखिबी मा बोली से कहूछ चेतन गरभा माटी शेष कवि या कहते तू हूँ चेतन गरभा माटी मो भितर जो अवचेतन मन अच्छी से अवचेतन चाबिकाठी तो पाखे अच्छी एई माटी रे अनेक चेतना भरपूर होगी रही से चेतना को तू मते थोड़े जाग्रत करी दे माँ तोर सैनिक ही मु लड़बी तो पाई जीवन देवी तोर गुणगान करी तोर सेवारे लगी जनमानसर सेवारे लगी बोली कवि माँ को निवेदन करुचे से कहते केउठी हजिची खोजी दे मोर चेतनार चाबिकाठी हे चेतन गरभा माटी तू कोठी मोर चेतन हजि जाइछि मोर चेतना को फेरई दे थरे जाग्रत करई दे बोली कवि निवेदन करुछन्ति एवं चेतनार चाबिकाठी को खोजी पाइबा पाई कवि माटीमा पाखरे निवेदन करुछन्ति एही हला तुमर कविता कवि विद्युत प्रभात देवी आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े जाज्वल्यमान प्रतिभा तांकर कवितारे अनेक मर्मस्पर्शी कथा आमे देखा पाई था एवं तांकर जीवन काल स्वल्प समय हेले मध्य से अनेक सुंदर कविता रचना करि जाइछन्ति एवं ओडिया साहित्य को समृद्ध करने सहित आज पर्यंत आमर जनमानस से जीवित अच्छा आमे कविताटी को पढ़ा जो अबुझा रहिले पुणी आउ थे आमे आलोचना करिबा। धन्यवाद।